ونحمده ونصلي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم وفقنا في الدين. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی قرآن کی تلاوت پڑھنے کی اور سمجھنے کی 19 رکوع ہے سورہ بقرہ کی. جیسا کہ ہمیشہ کی طرح ایک ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی ترجمہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور ضعیف ہوں، کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں. حضور نے فرمایا سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے 100 غلاموں عرب آزاد کیے. اور الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، پڑھا کرو اور اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے 100 گھوڑے مع سامان لگام وغیرہ جہاد میں سواری کے لیے دے دیے. اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ ایسا ہے کہ گویا تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیے اور وہ قبول ہو گئی. اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو تمام آسمان زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے. اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو. حضرت ابو رفاع کی بوئی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وظیفہ مختصر بتا دیجئے، زیادہ لمبا نہ ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھا کرو. اللہ جل شانہ اس کا جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے. پھر سبحان اللہ 10 مرتبہ کہا کرو. اللہ تعالیٰ پھر یہی فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے. پھر اللہم اغفر لی 10 مرتبہ پڑھا کرو. حق تعالی شان فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے مغفرت کر دی. 10 مرتبہ اللہم اغفر لی کہو. 10 مرتبہ اللہ جان شان فرماتے ہیں کہ میں نے مغفرت کر دی. جائفہ اور بوڑھوں کے لیے، یہ بالخصوص عورتوں کے لیے کس قدر صلح اور مختصری چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرما دی ہے. دیکھیے ایسے مختصر چیزوں پر جن میں نہ زیادہ مشقت ہے نہ چلنا پھرنا ہے، کتنے بڑے بڑے ثوابوں کا وعدہ ہے. کتنی کم نصیبی ہوگی اگر ان کو وصول نہ کیا جائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کوئی چیز مجھے تعلیم فرما دیجیے جس کے ذریعے سے نماز میں دعا کیا کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو اور جو چاہے اس کے بعد دعا کیا کرو. دوسرا حدیث میں اس کے بعد یہ ارشاد ہے کہ قرآن کی تلاوت کے بعد اس کو پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. بلا سب آسمانوں کے اور زمینوں کے بنانے میں اور ایک کے بعد دغیر رات اور دین کے آنے میں اور جہازوں میں جو کہ سمندروں میں چلتے ہیں آدمی کے نفع کی چیز ہیں. اور اسباب لے کر اور بارش کے پانی میں جس کو اللہ تعالی نے آسمان سے برسایا
फिर इसे ज़मीन को तरोताज़ा किया, इसके खशक हुए पीछे और हर किस्म के नहायात इसमें फैला दिए, और हवाओं के बदलने में और अबर में जो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुतअद्दिद और मुतल्लिक रहता है। लायातिल लिकौमिन याकिलून, दलील तौहीद के मौजूद है इन लोगों के लिए जो अक्ल सलीम रखते हो। और मिनन्नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन व युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाहा शदीदुल अज़ाब। और एक आदमी वो भी है जो अलहिदा खुदाई ताला के औरों को भी सिर्फ खुदाई इकरार कर देते हैं, उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से रखना ज़रूरी है। और जो मोमिन है इनको अल्लाह ताला के साथ कोई मोहब्बत है। और क्या खूब होता अगर ये जालिम मुशरिकीन जब दुनिया में किसी मुसीबत को देखते तो इसके वाक़े में गौर करके समझ लिया करते कि सब क़ुव्वत अल्लाह ताला ही को है। अल्लज़ीना तबिउ मिनल्लज़ीना तबउ वरअउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहुमुल अस्बाब। और ये समझ लिया करते हैं कि अल्लाह ताला का अज़ाब आखिरत और भी सख्त होगा, जबकि वो लोग जिनके कहने पर दूसरे चलते थे उन लोगों से साफ अलग हो जाएंगे जो उनके कहने पर चलते थे, और सब अजाब मुसहद कर लेंगे। और अहम इनमें जो तलाक़ात थी इस वक्त सब कता हो जाएंगे। वक़ालल्लज़ीना तबअू लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रअू मिन्ना कज़ालिका युरिहुमुल्लाहु अमलहुम हसरतिन अलैहि व मा हुम बिखारिजीन मिनन नार। और जब ये तबा लोगों यूँ कहने लगेंगे कि किसी तरह हम सबको ज़रा एक दफ़ा दुनिया में जाना मिल जाए तो हम भी उनसे साफ अलग हो जाएंगे, जैसा ये हमसे इस वक्त साफ अलग हो बैठे हैं। अल्लाह ताला यूँ ही इनकी बदअमलियों को खाली और मान करके इनको दिखला देंगे और उनको दोज़ख से निकालना भी नसीब न होगा। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ कर। जैसा कि मैंने पढ़ा था कि कुरान की तिलावत के पहले एक हदीस हमने पढ़ा था। दूसरी हदीस में शख्स बात इरशाद है कि जो चाहे दुआ किया करो। हक ताले शान ने उस दुआ पर फरमाते हैं, हाँ हाँ मैंने कबूल की। कितने साहिल और मामूली अल्फाज है जिनको न याद करना पड़ता है न इनमें कोई मेहनत उठानी पड़ती है। दिन भर हम लोग बकवास में गुजार देते हैं, न तिजारत के साथ दुकान पर बैठे बैठे या खेती के साथ ज़मीन के इस्तेमाल में मशगूल रहते हुए अगर ज़बान से इस तस्बीह को पढ़ते रहें तो दुनिया की कमाई के साथ आखिरत की कितनी बड़ी दौलत हाथ आ जाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि फरिश्तों की एक जमात है जो रास्ते वगैरह में गश्त करती रहती है, और जहाँ कहीं इनको अल्लाह का जिक्र करने वाला मिलते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को बुलाकर सब जमा हो जाते हैं, और जिक्र करने वालों के गर्द आसमान तक जमा होते रहते हैं। जब वो मजलिस ख़त्म हो जाती है तो वो आसमान पर जाते हैं। अल्लाह जल जलाले बावजूद देख हर चीज़ को जानते हैं, फिर भी दरियाफ़त फरमाते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। वो अर्ज करते हैं कि तेरे बंदों की फ़लाँ जमात के पास से आए हैं। वो तेरी तस्बीह और तकबीर और तहमीद बड़ाई बयान करने और तारीफ़ करने में मशगूल थे। इरशाद होता, क्या इन लोगों ने मुझे देखा है? अर्ज करते हैं, या अल्लाह देखा तो नहीं। इरशाद होता है,
कि अगर वो मुझे देख लेते तो क्या हाल होता। अर्ज करते हैं कि और भी ज़्यादा इबादत में मशगूल होते और इससे भी ज़्यादा तेरी तारीफ़ और तस्बीह में मनहमक होते। इरशाद होता है कि वो क्या चाहते हैं। अर्ज करते हैं कि वो जन्नत चाहते हैं। कौन कहता है? अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं। इरशाद होता है, क्या इन्होंने जन्नत को देखा है? अर्ज करते हैं कि देखा तो नहीं। इरशाद होता है, अगर देख लेते तो क्या होता। अर्ज करते हैं कि इससे भी ज़्यादा दर्द और तमन्ना और इसकी तलब में लग जाते। फिर इरशाद होता है कि किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह कितना बड़ा रहीम करीम है। अर्ज करते हैं कि जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। इरशाद होता है, क्या इन्होंने जहन्नम को देखा है? अर्ज करते हैं कि देखा तो नहीं है। इरशाद होता है कि अगर देख लेते तो क्या होता। अर्ज करते कि और भी ज़्यादा इससे भागते और बचने की कोशिश करते। इरशाद होता है कि अच्छा तुम गवाह रहो कि मैंने इस मजलिस वालों को सबको बख्श दिया। और एक फरिश्ता अर्ज करता है, या अल्लाह, फला शख्स इस मजलिस में इत्तेफाक अपनी किसी ज़रूरत से आया था, वो इस मजलिस का शरीक नहीं था। इरशाद होता है कि ये जमात ऐसी मुबारक है, इनके पास बैठने वाले भी महरूम नहीं होता। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।